As the name indicate, giant chromosome means the chromosome which are very large in size in comparison to the other chromosomes. Okay, and these type of chromosome not present in all animals. They are mainly present in some animals as Drosophila and some larvae. Okay, and the giant chromosomes are very long and thin, and they are 200 times larger than the normal chromosome during the metaphase stage of the cell division. And mainly giant chromosomes are two types: polytene chromosomes and lamb brush chromosome. Okay, so in this diagram you are seeing two type of the chromosome. These are the polytene chromosome and these are the lamb brush chromosome. Okay, so first we will start with the lamb brush chromosome. And these lamb brush chromosome, as the name indicate, they look like a brush which is used to clean the lamps, है ना? आपने देखा होगा कि लैम्प या बॉटल्स को क्लीन करने के लिए हम एक ब्रश यूज करते हैं which is known as the lamp brush. So their structure is very much similar to the lamp brush chromosome. Here is a picture, अभी upload होगी, wait. And because the structure of lamp chromosome is very much similar to the brush which is used to the lamp, so they are known as the lamp brush chromosome, and they are a special type of the giant chromosomes. They are found in the nuclei of oocytes of many vertebrates such as fishes, amphibians, reptiles, and birds. During the prolonged diplotene stage of first meiosis, as you know, the meiosis divided into two phases: meiosis first and meiosis second, and both first and second phases are further divided into uh, four parts: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And meiosis first prophase, you can say prophase first, is further divided into five substages: liptotene, zygotene, pectine, diplotene, and dikinesis. So among them, stage is the diplotene stage. So this stage little bit prolonged during the first meiosis in these vertebrates, and in this stage you can see easily lamb brush chromosome in the nuclei of the oocyte of fish, amphibian, reptiles, and birds. And besides the oocyte, these chromosomes can be found in the nucleus of Drosophila spermatocyte. Okay, and the lamb brush chromosome were first observed by the Fleming in 1882 and given the name by Rieucart in 1892. So remember the name of Fleming, who discovered or observed the lamb brush chromosome firstly in 1882. Okay, slide is not opening. Okay, अब look, this is the lamb brush chromosome. पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है? तो आप इसमें देख रहे हैं कि देयर आर द टू क्रोमोसोम्स which are bound to each other. Okay, one chromosome and second chromosome. So these lamb brush chromosome mainly present in pair. So here it is written paired lamb brush chromosome because they are the paired chromosome, and you know each chromosome are made up of two chromatids. So you can see the lamb brush chromosome consists four chromatids. ओके, या आप कह सकते हैं कि lamb brush chromosome present as a bivalent. Bivalent term we will use when the two chromosomes are present together. Okay, and each chromosome is made up of two chromatid. Okay, so if you enlarge that particular portion of this chromosome, then you will observe that the lamb brush chromosome has a central axis. This is the central axis. Okay, central axis means it is made up of the DNA, condensed form of the DNA, and from this central axis there are so many loops are emerges. Okay, क्या होगा कि इस एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि there are so many dot like structures are present which are known as the chromomere. And what is the chromomere? Chromomere is the condensed form of the DNA. ओके, एक्चुअली क्या पूरा एक डीएनए होता है, डीएनए जगह जहाँ पे क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है,
ठीक है, तो स्क्वाइल्ड पोर्शन को हम बोलते हैं क्रोमोमियर, एंड दीज क्रोमोमियर्स अपीयर एज द बीड along the length of the DNA. Okay, तो आप इस एक्सिस के along देख रहे हैं, there are so many dot like structures are present which are known as the chromomere, and from each chromomere two lobes emerge on both side. देखिए आप अगर एक क्रोमोमियर के देखें, अगर हम ये जो लिखा है, this is the one chromomere and from this chromomere two loops, one loop and the second loop emerge out. Okay, and आप जितने भी क्रोमोमियर देखेंगे सब में जितने भी पेयर्ड लूप्स निकल रहे हैं, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल लूप्स आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. जैसे कि हमने ये देखे, both loop size are same. Similarly, if you here see here this one and this one, so both loop size is very much similar. Similarly here, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो दोनों लूप्स हैं इनका साइज डिफरेंट हो, नेवर. ओके, जो भी लूप्स निकलते हैं पेयर में from the each chromomere, they will be the very much similar to each other in the size and in the shape. ओके, तो अगर हमने देखा तो मीन्स क्या है, ये टू लूप्स क्यों एमर्ज आउट हो रहे हैं फ्रॉम द सेम सिंगल क्रोमोमियर, बिकॉज दिस एक्सिस रिप्रेजेंट अ सिंगल क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड. तो ये जो क्रोमोमियर है, यहाँ से एक लूप निकला, this loop represent the one chromatid and this second loop represent the second chromatid. ओके, तो यानी कि टू क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, इसलिए क्रोमोमियर से टू लूप्स विल बी एमर्ज आउट. ओके, अब हमने क्या किया, किसी एक लूप का हमने एनलार्ज किया इमेज और हम उसमें देखते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है. ओके, अब नाउ यू विल सी दैट देयर आर टू पोर्शन. ये क्या है पूरा, दिस इज द एक्सिस. ओके, दिस इज द एक्सिस एंड this is the one chromatid and this is the second chromatid. Okay, because I told you that the each chromosome is made of the two chromatid, so here it is clear, this is the one chromatid and this is the second chromatid. and ये क्या है, chromomere formed from highly condensed chromatin. Okay, chromomere क्या होता है, highly condensed form of the chromatin, means where the DNA coiled too much, है ना, स्पॉन्टेनियसली और ऑटोमेटिकली खुद से ही क्या हो जाते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं ज्यादा, तो वहां पे क्या हम उस रीजन को क्या बोल देते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं. बट एट सम स्टेज, एज अ डिप्लोटीन स्टेज हम बात कर रहे हैं, है ना, जो मियोसिस चलती है, जब डीएनए डुप्लीकेशन का काम होता है या सेल डिवीजन का काम है जब, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर स्टेज एज द डिप्लोटीन स्टेज क्या होगा कि सम पार्ट ऑफ द डीएनए विल बी लूज. ओके, तो क्या है, ये पूरा एक डीएनए है, यानी कि एक्सटेंडेड क्रोमेटिन इन लूप, है ना, एक्सटेंडेड क्रोमेटिन मींस लूज्ड डीएनए. तो एट सम स्टेज सम पार्ट ऑफ द डीएनए विल बी लूज, है ना, एंड इट एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ लूप. इनिशियली कैसा था, कंडेंस्ड था, तो हमने इसको क्रोमोमियर बोला, बट सम पार्ट क्या हो गया इसका, एमर्ज आउट हो गया आफ्टर द लूजिंग. ठीक है, तो इट विल फॉर्म लूप. तो दिस वन लूप represent yeah emerge out from the one chromatid and second loop emerge out from the second chromatid. Okay, अब आपने देखा कि लूप्स की फॉर्मेशन हुई. ठीक, these loops formation give the brush like appearance to this chromosome, है ना. नॉर्मली क्या है, क्रोमोसोम में एक सेंट्रल एक्सिस है, इट इज मेड अप ऑफ द डीएनए, बट फ्रॉम द डीएनए so many loops are emerges out and the formation of loops gives a lamp brush appearance. एक ब्रश जैसा appearance ये प्रोवाइड कर रहा है. ओके, तो दिस इज द बेसिक रीजंस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द lamp brush chromosome. ओके, देखिए अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि दिस इज द वन पोर्शन ऑफ द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम. आप देख रहे हैं इट इज मेड ऑफ द टू क्रोमोसोम्स एंड दीज आर द लूप्स. ओके, अब हमने एक लूप को एनलार्ज किया. अब इसमें आप देखोगे कि दिस इज वन लूप एंड दिस इज द सेकंड लूप एंड दिस इज द क्रोमोसोम एक्सिस. ओके, व्हिच इज मेड अप ऑफ द टू क्रोमेटिड्स. अब आप देखिए दिस लूप एक्सिस, ठीक है, दिस इज द लूप एक्सिस व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए and it is surrounded by a matrix. This matrix is made up of protein and RNA. So this protein and RNA कहाँ से आया, after the transcription and translation. So you can see or you can say that the DNA present in the loop is genetically active portion of the DNA, है ना.
आपने देखा कि डीएनए पूरा एक लंबा डीएनए होता है, नॉट होल डीएनए इज एक्टिव. एक्टिव मींस इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड. एक्सप्रेशन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पूरी के पूरे डीएनए का नहीं होता. क्या होता है, कुछ पोर्शंस होते हैं, सम पोर्शंस आर एक्टिव एंड सम पोर्शंस आर इनएक्टिव. तो जितना भी एक्टिव पोर्शन हम उसको बोलते हैं विच इज एक्सप्रेस्ड, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा वो क्या कहलाता है, इनएक्टिव रीजन कहलाता है. ओके, तो जितना ये पूरा क्या है, पहले इनिशियली कैसा था, कंडेंस्ड फॉर्म थी डीएनए की. कंडेंस्ड यानी कि इट इज नॉट एक्सपोज्ड, इट विल नॉट एक्सप्रेस, मींस इट विल नॉट फॉर्म एनी प्रोटीन. यानी कि इनडायरेक्टली हम बोले तो ना तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा, तो किस उस पोर्शन से क्या बनेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगी. बट व्हेन द लूप फॉर्मेशन अकर, तो डीएनए क्या हो गया, लूज हो गया, मींस इट इज एक्सपोज्ड. अब ये क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द डीएनए. ओके, अब ये जो एक्टिव फॉर्म है डीएनए की, इसमें क्या होता है, वन अगर हम लूप को देखें, आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि ये मैट्रिक्स पूरे रीजन में कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जबकि ऐसा नहीं होता. क्या होता है कि वन रीजन इज द थिन एंड सेकेंड अदर रीजन इज द थिक, है ना. अगर हम देखें एक लूप का स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होगा, दिस इज द लूप. और यहाँ से स्टार्ट अगर होता है ये पूरा और इस रीजन तक, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा पूरा का पूरा मैट्रिक्स. एक रीजन में कैसा होगा, थिन होगा, और दूसरे रीजन में थिक होगा. ओके, तो लूप का एक पोर्शन कहलाता है थिन रीजन ऑफ द लूप एंड सेकेंड पोर्शन इज नोन एज द थिक रीजन ऑफ द लूप. ओके, तो जो थिन पोर्शन है मींस वहां पे क्या स्टार्ट हुआ, ट्रांसक्रिप्शन. आपने देखा ना कि दिस सेंट्रल डीएनए सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहाँ से आया, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन एंड translation. Okay, because after the transcription RNA will be formed from the DNA, and after the translation protein will be formed from the RNA. So after the transcription and translation, these proteins and RNA will be accumulate around the central portion of the DNA. Okay, तो एक रीजन जो थिन पोर्शन है, from that region transcription translation will be start and move along to the second side which is the thick region of the loop. ओके, तो इसीलिए एक पोर्शन थिन होता है और दूसरा पोर्शन थिक होता है, क्योंकि जो थिक पोर्शन है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, थिक पोर्शन हो जाता है. ओके, तो आप देख रहे हैं कि जितना भी डीएनए है लूप में वो सारा कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, मींस इट टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और इनडायरेक्टली यू कैन से इट कैन पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, एंड रिमेनिंग पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल एक्सिस ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, इट इज नॉट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द डीएनए. ओके, नाउ यू विल सी दैट अबाउट 5 to 10% of the DNA is present in the lateral loops. देखो टोटल डीएनए में से केवल 5 to 10% डीएनए ऐसा होता है जो लेटरल लूप्स में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है. सो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लूप्स increases in meiosis till it reaches a maximum in diplotin, है ना. क्योंकि हमने इनिशियली भी मैंने तुम्हें बताया था कि यू कैन ऑब्जर्व लैम्ब्रश क्रोमोसोम इन द oocyte ऑफ द ड्रोसोफिला और एम्फीबियन और रेप्टाइल बर्ड्स, इनके oocyte में आप देख सकते हैं. व्हेन, कब देख सकते हैं इनकी, मेनली एम्फीबियंस की oocyte में हमें ये दिखेंगे, हम उसको देखेंगे कि जब डिप्लोटीन स्टेज चल रही है ना. क्यों, ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज द लूप फॉर्मेशन विल इंक्रीज सडनली. ओके, so the number of pair of loops increases in meiosis till it reaches a maximum in the diplotin. Okay, and after diplotin stage क्या होगा, number of loop pairs gradually decreases and loops disappear at the metaphase first. यानी कि डिप्लोटीन में सबसे ज्यादा है, देन डिप्लोटीन के बाद क्या होगा, प्रोफेज कंप्लीट होने वाला होता है, उसके बाद प्रोफेज के बाद स्टार्ट आता है मेटाफेज. तो मेटाफेज फर्स्ट तक डिक्रीज होते होते क्या हो जाता है, फिर डिसअपियर. If you see the nucleus or the chromosome of the oocyte during the metaphase stage or during the anaphase or telophase stage, you will not be able to see the Lamb-Brush chromosomes. Okay, क्योंकि loops क्या हो गए, खत्म हो गए तब. So in the when the loops will disappear, you will not can see the Lamb-Brush chromosome. So if you want to see the Lamb-Brush chromosome, you have to see the chromosome during the diplotin stage. Okay,
तो ये क्या हो गया, लैम्ब्रश क्रोमोसोम के बारे में है कि किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फ्लेमिंग ने, एंड व्हाई दे आर नोन एज द लैम्ब्रश क्रोमोसोम, बिकॉज दे सिमिलर इन अपीयरेंस टू द ब्रशेस which are used in to clean the lamps or to clean the bottles. Okay, and there are so many loops are formed from the chromomere, so due to the formation of loops they look like a lambrush chromosome. Okay, now function of the lambrush chromosome, mainly there are two functions, synthesis of RNA and formation of yolk material. Synthesis of RNA means function of lambrush chromosome involve synthesis of RNA and protein by their loops. As I told you earlier, है ना, because in the loop region DNA is very active, so it form a RNA and protein by the transcription and translation. Okay, and RNA is synthesized only at the thin insertion and then carried around the loops to the thick insertion. Okay, there it may be either destroyed or released into the nucleus, means after the formation either they destroyed or they release into the nucleus. Okay, proteins हैं और RNA है ये, ठीक है. Second function of formation of yolk material. So there are some probabilities that lambrush chromosome help in the formation of certain amount of yolk material for the egg. That's why they are present in the oocytes, है ना, क्योंकि और जगह क्यों नहीं मिलते, मेनली oocyte में मिलते हैं, बट इन सम केस स्पर्मेटोसाइट्स में भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली किस में मिलेंगे, oocyte में, बिकॉज दे कैन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ certain amount of the yolk material which is required for the development of embryo. Okay, so this is about the lambrush chromosome. And second large chromosome is polytene chromosome, or we can say salivary gland chromosome. Okay, and why these are known as the polytene chromosome and why these are known as the salivary gland chromosomes? So there are two reasons. First, polytene chromosome. Polytene means many strand. Okay, whenever the chromosome is made up of many strands, it is known as polytene chromosome. Many strand means many strands of the chromatid, or you can say many strand of the DNA, है ना? Because during the meiosis or mitosis you see that the cells show DNA replication or DNA duplication, but no, in normal condition after the duplication both DNA will be separate out, but during some conditions क्या होता है कि ये जो after DNA duplication DNA will not separate out, either they will attach together through the time. Okay, कभी भी ये separate नहीं होंगे, हमेशा क्या रहते हैं, joint रहते हैं. जैसे एक DNA था, वो DNA duplication होगा, कितने बनेंगे, 2 DNA, and both DNA will remain together. Okay, then these 2 DNA again repeat the DNA replication, then क्या बनेंगे, 4 DNA. They always remain together. इस तरीके से DNA duplication चलता जाता है 10 cycles or more than 10 cycle और करीब 1000 DNA strands will remain attached together to form a polytene chromosome. ओके, जब भी कोई भी डीएनए डुप्लीकेशन के बाद यानी कि रेप्लिकेशन के बाद सेपरेट नहीं हो रहा है ना, सेल के अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर ही है, मींस एंडो डुप्लीकेशन भी हम उसको बोलते हैं. तो मींस बहुत सारे स्ट्रैंड एक साथ लगे रहते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल देते हैं. ठीक है, and now why it is known as the salivary gland chromosome, because these chromosomes are mainly found in the salivary gland of insects. That's why they are known as the salivary gland chromosome. पहले ऐसा था इनिशियली कि साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन द सैलाइवरी ग्लैंड, so they called as the salivary gland chromosome, but after some time बाद में देखा, ये ऑब्जर्व किया गया कि polytene chromosome besides the salivary gland also occur in other part of the body. Okay, तो salivary gland chromosome not a correct term, बट ये था कि इनिशियली इनको केवल सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में देखा गया था, इसलिए हम इसको सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट टर्म इज द पॉलीटीन क्रोमोसोम, बिकॉज दे
always have many strands of the DNA or we can say many strand of the chromatids और chromatin, है ना? कहीं भी आप पढ़ेंगे different different books में तो आप different different terms देख सकते हैं. Okay. अब polytene chromosomes were first reported by E.G. Balbiani in 1881. Okay. The name polytene was assigned to these chromosomes by the caller. Okay. The polytene chromosomes are much larger than the normal somatic chromosome, but smaller than the Lamb-Brush chromosome. Okay, if you compare the Lamb-Brush and polytene chromosome, then you will observe that the Lamb-Brush chromosome are much larger than the polytene chromosome. Okay, but polytene chromosome also a giant chromosome, so it will also be a large than the normal somatic chromosome. Okay, they are quite common in salivary glands of insects and are therefore popularly called salivary gland chromosome, but also present in midgut epithelium and rectum and Malpighian tubules of various genera as Drosophila, Sierra, Rhynchosierra, and Chironomus. Means besides the salivary gland, these chromosomes can also found in the midgut epithelium, rectum, and Malpighian tubules. So it is not a exact term. Okay, and polytene chromosome also occur in other organs of insects, antipodal cells, endosperm cells and suspensor cells of the embryo. तो आप देख रहे हैं कि ये सलाइवरी ग्लैंड के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में या पार्ट्स में बॉडी के ये इंसेक्ट्स की मिलते हैं. दैट्स व्हाई the exact term is the polytene chromosome. Okay, so this is the location and the scientist who discovered or named the polytene chromosome. Okay, and this is diagram of the polytene chromosome of Drosophila which occur in the salivary gland. Okay, so you are watching in this diagram that there are so many chromosomes as the chromosome 2, chromosome 3 and X chromosome. Actually in Drosophila total 4 chromosomes are found. 4 chromosomes कौन से हैं? 2 autosomes, chromosome 2, chromosome 3 and 1 sex chromosome, X chromosome or Y chromosome. It depends on the sex of the insect, and one is the small chromosome. Okay, this is the small short part of the chromosome, and you will see that this portion show the left arm of the chromosome 2, this show the right arm of the chromosome 2, similarly left arm of the chromosome 3 and right arm of the chromosome 3. एक्चुअली क्या होता है कि ड्रोसोफिला में these all chromosomes जैसे chromosome 2 है, chromosome 3 है and X chromosome or Y chromosome and this small part of the chromosome, their centromere combine to each other and form a chromocenter. ओके आप ही देख रहे हैं ना क्रोमोसेंटर. ओके तो ये जितने भी क्रोमोसोम है ये कंबाइंडली इनके सबके सेंट्रोमियर मिलके क्रोमोसेंटर बनाते हैं. ठीक, और ये कंबाइंडली हम इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉलीथीन क्रोमोसोम है. यानी कि जो पॉलीथीन क्रोमोसोम्स होते हैं एक्चुअली यू नो ईच क्रोमोसोम हैज ए होमोलोगस पेयर. ओके जितने भी हम क्रोमोसोम्स देखते हैं किसी में भी दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर. ओके एंड बोथ आर द होमोलोगस. सो सिमिलरली पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम के केस में भी. ओके तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, ड्रोसोफिला के पॉलीटीन क्रोमोसोम का. ओके दिस डायग्राम इज नॉट क्लियर. ओके कोई नहीं. अच्छा अगर हम पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व इफ यू टेक अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि ये था हमारा this is the whole chromosome. If you take a particular part as this part, okay, ये part अगर हम लेते हैं तो अगर हम इसको enlarge करते हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा. ठीक, इसको अगर हम देखेंगे ये this is a small part of the whole chromosome. So you observe that there are, पहले तो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, ये इतना मोटा क्यों दिख रहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड और थाउजेंड्स ऑफ द क्रोमेटिन. एक बनता है पैरेलली, सारे स्ट्रैंड क्या रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं पैरेलली, तो वो एक क्या बनाते हैं, बहुत मोटा एक पॉलीटीन क्रोमोसोम बनाते हैं. सो यू विल सी that in the
whole polytene chromosome, there are so many band-like structures are present. Band यानी कि ये horizontal lines आप देख रहे हैं, these are the bands. Some are the dark lines and some are the light lines. Okay, dark lines means known as the dark band. एंड जो लाइट लाइन्स है हमने उनको क्या बोल दिया, लाइट बैंड. और यहाँ यू कैन से इंटरबैंड, मेनली लाइट बैंड या इंटरबैंड बोलते हैं. इंटरबैंड यानी कि द बैंड प्रेजेंट बिटवीन द डार्क बैंड्स. ओके, एंड व्हाट आर द डार्क बैंड एंड इंटरबैंड? एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा डीएनए से ही तो बना है क्रोमोसोम, है ना. तो एट सम पार्ट डीएनए इज वेरी कंडेंस्ड एंड इन सम पार्ट डीएनए इज रिलैक्स्ड कंडीशन. ओके, तो जहां कहीं भी कंडेंस्ड होता है मींस वो क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन. ओके, कंडेंस्ड फॉर्म में है और कहीं पे रिलैक्स्ड फॉर्म में है. ठीक है, यानी कि एक एक्टिव पार्ट है और एक इनएक्टिव पार्ट है. ठीक है, तो मेनली जहां कंडेंस्ड होगा वो पार्ट हमें कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है. बिकॉज वेन एवर यू स्टेन द क्रोमोसोम यू विल ऑब्जर्व सम पार्ट टेक डार्क कलर एंड सम पार्ट टेक लेस कलर, है ना, लाइट कलर. डार्क कलर क्यों ले रहा है, क्योंकि डीएनए अमाउंट कहाँ है, बहुत ज्यादा है उस जगह पे, तो इसलिए वो डार्क कलर दिख रहा है हमें. जहां पे डीएनए का अमाउंट कम होगा वो हमें कैसा दिखेगा, लाइट कलर का दिखाई देगा. ओके, सो दीज डार्क एंड लाइट बैंड मेनली रिप्रेजेंट द कंडेंस्ड और लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए. तो आप ये सारे बैंड्स इजीली आप पॉलीटीन क्रोमोसोम में देख सकते हैं. ठीक है, तो जो कंडेंस्ड है वो कैसा हो जाएगा, लेस एक्टिव होगा, और जो भी लूज फॉर्म में है डीएनए वो मोर एक्टिव फॉर्म होगी. ठीक है, अब इस पूरे क्रोमोसोम पर आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी स्वेलिंग्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम. जैसे एक स्वेलिंग ये है ना, ये क्या है, हल्की हल्की सी स्वेलिंग्स है, बट सम आर द मोर स्वेल्ड पोर्शन यानी कि लूप लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें भी बन जाते हैं. ओके, तो जो छोटे छोटे स्वेल्ड पार्ट हैं उनको तो हम कंसीडर नहीं करते. वो स्वेलिंग कैसे, एक्चुअली पूरा डीएनए है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, कहीं पे लूज फॉर्म में है. अब क्या होता है, किसी किसी रीजन में डीएनए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लूज हो जाता है. ठीक है, जैसे लूज हो जाएगा, मान लीजिए अभी कोई चीज है यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, खूब सारी कॉइल्ड फॉर्म में है. ठीक है, इतनी ही इसके लिए स्पेस है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये पोर्शन क्या हो जाए, लूज हो जाए, तो क्या हो जाएगा एकदम से कि ऐसे हो जाएगा, है ना, लूज होके. तो हमें ये कैसा दिखेगा, स्वेल्ड पोर्शन की फॉर्म में हमें दिखाई देगा. ठीक है, तो कुछ रीजन पे ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बाल्बियानी रिंग्स. दीज आर द बाल्बियानी रिंग्स. ओके, ये पूरी क्या है, बाल्बियानी रिंग्स है. These Balbiani rings are known as the Balbiani ring because they firstly discovered or observed by the Balbiani. है ना, वैसे तो पूरा पूरा पॉलीटीन क्रोमोसोम फर्स्टली ऑब्जर्व बाय द इजी बाल्बियानी, तो उन्हीं के नाम पे हम इन लूप्स को क्या बोलते हैं, बाल्बियानी रिंग बोलते हैं. ओके, एंड हाउ दीज रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन और डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन. आप देखेंगे इसमें पूरा पोर्शन है, ये तो सारी क्या है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये जितनी भी आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं. बट इन दिस लूप यू विल ऑब्जर्व द क्रोमोनिमेटा. दिस इज द क्रोमोनिमेटा. ये भी क्या है, क्रोमोनिमेटा, 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 ऑल आर द क्रोमोनिमेटा. तो आप देख रहे हैं कि इस रिंग में ये जो क्रोमोनिमेटा है ये कैसे लूज्ड फॉर्म में है ना. यहाँ पे कैसे है, बहुत कंडेंस्ड है, इसलिए आपको केवल एक बैंड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है. बट व्हेनेवर they will be loosed, they form a ring like structure which are known as the Balbiani ring. So ये जो Balbiani ring है, they are very much similar to the loops of the lamp brush chromosome. है ना, क्या सिमिलैरिटी है, आपने देखा जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम में लूप्स थे वहां पे जो डीएनए था, इट इज वेरी एक्टिव डीएनए, है ना, बिकॉज इट टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. Similarly, in the Balbiani region, the chromonimeta or you can say the DNA is very active because it is present in the loose form, है ना, यानी कि वो एक्सपोज हो रहा है, लूज फॉर्म में है, तभी आप वो किस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में. सो दिस रीजन इज वेरी एक्टिव रीजन in comparison to the whole portion of the chromosome because it take part in the synthesis of protein. Okay, so Balbiani ring of the polytene chromosome and loops of the lamp brush chromosome are very much similar. Okay, and this Balbiani ring also known as the puff. ठीक,
पफ भी बोल सकते हैं हम इनको, और बाल्बियानी रिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ द जाइंट पॉलीथीन क्रोमोसोम। ओके, जैसे कि आपने देखा था लैम्ब्रश क्रोमोसोम, उसमें उसका मेन काम था आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, और क्या बोलते हैं यॉक मटेरियल की सिंथेसिस। अब देखते हैं पॉलीथीन। मेन फंक्शन ऑफ द पॉलीथीन क्रोमोसोम इज टू कैरी जीन्स which ultimately control physiology of an organism. These genes are formed of DNA molecule. देखो मीनिंग सेम है कि जो पॉलीथीन क्रोमोसोम है, जैसे अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो इट्स मेन क्रोमोसोम इज द पॉलीथीन क्रोमोसोम, एंड दिस क्रोमोसोम का ये जो पफ पोर्शन है या बाल्बियानी रिंग पोर्शन है, इट इज अ वेरी एक्टिव रीजन, सो इट मेनली डिसाइड द फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट डिसाइड द विच टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड। ओके, अगर ये जो पफ रीजन है, बाल्बियानी रीजन वाला बाल्बियानी रिंग्स का जो रीजन है, अगर हम ये ना बने, है ना, या ये इनएक्टिव हो जाए तो प्रोटीन विल नॉट फॉर्म, सो फिजियोलॉजी विल बी डिस्टर्ब। ओके, तो इसीलिए इसमें मोस्टली डीएनए मॉलिक्यूल रहते हैं एक्टिव फॉर्म में, इसलिए डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है फिजियोलॉजी को। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन इन रिस्पेक्ट टू द यूक्रोमेटिन प्रोड्यूसेस जायंट चेंजेस कॉल्ड पोजीशन इफेक्ट। These effects cause mutation in animal as well. देखो, what is the meaning of that line? Actually, heterochromatin means condensed region और euchromatin means relaxed region, यानी कि heterochromatin dark band, euchromatin light band. ठीक है, तो जितने भी पफ हैं वो कहाँ बन रहे हैं? जहाँ पे मेनली यूक्रोमेटिन रीजन होगा, यानी कि जहाँ पे डीएनए लूज फॉर्म में होगा। तो अगर वहां पे क्या आ जाए, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन आ जाए, शिफ्टिंग हो जाए हेटेरोक्रोमेटिन की, ठीक है, तो क्या होगा? डीएनए विल बी कंडेंस्ड। ठीक है, तो क्या नहीं होगा? डीएनए एक पर्टिकुलर रीजन है, मान लीजिए हम देखते हैं डीएनए का, ये एक पर्टिकुलर रीजन है ना, ये क्या है? एक्टिव रीजन है। अब आप इस रीजन को देखिए, दिस इज द इनएक्टिव रीजन। ओके, अब इस पर्टिकुलर ये एक्टिव है तो यहाँ से एक पर्टिकुलर, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा डीएनए का, है ना, जब पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी। तो अब क्या हो जाए, यहाँ पे ये पोर्शन तो कंडेंस्ड हो जाए और ये रिलैक्स हो जाए। इसका मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन इन रिस्पेक्ट टू यूक्रोमेटिन मींस जो यूक्रोमेटिन रीजन था वो अब कंडेंस्ड फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी कि वो हेटेरोक्रोमेटिन बन जाए, और जो हेटेरोक्रोमेटिन था यानी कि कंडेंस था वो अब लूज हो जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ऐसे हो गया, ये तो हो गया कंडेंस्ड, ठीक है, और ये हो गया रिलैक्स्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इन दोनों रीजन का जो सीक्वेंसेस है डीएनए का, इट इज वेरी डिफरेंट। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हम बोलेंगे वो क्या है? डिफरेंट है। इनिशियली दैट रीजन ट्रांसक्राइब्ड एंड फॉर्म ए प्रोटीन, बट नाउ क्या होगा? that region is transcribed and form a protein, so these both region produce a different type of protein, है ना, and whenever the different type of protein is formed, क्या होगा? फंक्शंस बिल्कुल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, फिजियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि इनिशियली जो प्रोटीन बन रही थी, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, जैसे कि हमारी बॉडी में या हम ड्रोसोफिला की बॉडी की बात करें तो कोई ऐसी फिजियोलॉजी जो उनकी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी, है ना, या रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही थी प्रोटीन, अब वो प्रोटीन न बन के दूसरी प्रोटीन बनने लगी विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, और एंड सेकंड प्रोटीन इज नॉट वेरी यूजफुल। तो क्या होगा? सर म्यूटेशन हो जाएगा, है ना, एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर द एनिमल या इंसेक्ट जो भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? पोजीशन इफेक्ट। तो यानी कि इसका फंक्शन है कि ये कंट्रोल कर रहा है फिजियोलॉजी को, ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को। अगर पोजीशन इफेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। ओके, अब हेटेरोक्रोमेटिक रीजन्स कंटेन फ्यूअर जीन्स देन यूक्रोमेटिक पार्ट, है ना, कॉमन सेंस। ठीक है ना, कि हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में कम जीन होंगे इन कंपैरिजन टू द यूक्रोमेटिक, बिकॉज हेटेरोक्रोमेटिक रीजन इज इनएक्टिव रीजन, है ना। तो अगर उसमें ज्यादा जीन हो गए तो मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं बनेंगी। तो मींस जो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है उसमें जीन्स कम है, यानी कि उसमें वेस्ट पोर्शन ज्यादा है, यूजफुल पोर्शन कहाँ पर है? यूक्रोमेटिन में है। ठीक है, chromosomes also help in protein synthesis indirectly. Nucleolus contains RNA, and this RNA serve as a mean of transmission of genetic information to the cytoplasm, leading to the formation of specific protein. वही सेम जैसे हमने लैम्ब्रश क्रोमोसोम में देखा था, क्रोमोसोम is made up of the DNA
है ना। डीएनए के ही एक पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, पूरा जो डीएनए होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा डीएनए है, आप अगर बात करें डीएनए की तो, है ना, जब ये डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, और किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, है ना, और कंडेंस फॉर्म होकर क्या बनेगी, क्रोमोसोम बनेगा। तो अगर हम देखें तो क्रोमोसोम में मिलनी क्या है, डीएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीएनए, अब डीएनए पूरा का पूरा डीएनए कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा, है ना, यानी कि पूरे डीएनए में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन लिया हमने डीएनए का, दिस वन, ठीक है, दिस इज द एक्टिव पोर्शन ऑफ द डीएनए। तो हम इस, जो कि क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम उस टाइम इस रीजन को क्या बोलेंगे, जीन। मीन्स जीन is a functional unit or functional part of the DNA which express itself or which take part in the synthesis of protein। तो वही है कि chromosomes also help in protein synthesis, means because chromosome is made up of the DNA, so DNA after transcription form RNA, and from the RNA after translation protein will be formed। okay, एंड दीज प्रोटीन क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, हमारी फिजियोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को, सब कुछ यही क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ओके, सो दीज आर द जाइंट क्रोमोसोम्स एंड द टॉपिक इज कंप्लीटेड।